ओके गाइस, तो हमने ये कहा कि यहाँ पे जो हम देखेंगे दिस इज द ऑर्थोगोनल मैशिंग, उसमें जो ये बनता है दिस इज द ऑर्थोगोनल रैक एंगल, ये कटिंग एज है और ये बनाता है इसके साथ ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, कटिंग वेलोसिटी। ओके, सो इसमें जो अब हमने देखा देयर इज द वी इज द कटिंग वेलोसिटी, जो कि हमने देखा अभी वी इज द कटिंग वेलोसिटी किस किस के दरमियान बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, then vc is the chip velocity between the tool and the chip, and then vs is the shear velocity between the relative velocity between the chip and the workpiece। okay guys, then phi is the shear plane angle, ठीक है। अल्फा पता ही है आप लोगों को। t is the thickness of the uncut, t is the thickness of the uncut uh, t is the thickness of uncut or undeformed chip। okay, tc is the chip thickness। if you see here मैंने कहा अभी आपको this is the tc and this is your t, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक thickness of the uncut chip, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक this is the thickness of the chip। okay, now okay guys, okay, or one more thing, if you see that what is b now, b is the width of the chip। if you see that here, okay, if this is the tc, if this is here from here to here, this is tc। okay, and let us say कि ये ऐसे है, okay guys, so this is tc here, this is tc, ठीक है, this is the cutting edge, ठीक है, this is your cutting edge and this is the here, यहाँ पे हम लोग इसको मानेंगे b, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इसको मानेंगे b, और जो है what is bc, that is the thickness of यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है this form is your bc। okay guys, so this is bc, what is the b is the width of the uncut chip, तो ये है uncut chip, this is b, and bc is the width of the chip। okay, and what is the l is the length of the uncut chip। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अभी जो है कटिंग नहीं हुई, लेकिन इस सेक्शन में कटिंग हो गई, ठीक है, सो वो बन जाता है LC। व्हाट इज दिस द लेंथ ऑफ द चिप एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द अनकट चिप। हियर आई वुड लाइक टू मेंशन, ठीक है, जाता है ये बन जाता है, ये कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा हमारा LC, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगा हमारा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द L। L means the length of uncut chip। ओके, अब ये है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द चिप, थिकनेस ऑफ द चिप है दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू T ऑलमोस्ट, ठीक है, that is what I am saying, the thickness of the chip it is greater than T। why it is greater, why the chip is the why the chip has a greater thickness compared to that of the T, compared to that of the uncut chip? The reason is simple, it is just because of the thermal expansion। when there is a mechanical contact between the tool and the workpiece, there is a generation of the heat and that heat is transferred to the chip material। okay guys, the chip material has a higher temperature compared to that of the uncut workpiece। okay, so this chip material will undergo some sort of the thermal expansion, so because of this the thickness of the chip is considered as the greater। however, it is not the always the case, we only see it in case of the ductile materials। in case of ductile materials we see the thickness of the chip greater than the thickness uh, of the uncut workpiece। okay, if we consider the brittle material, for the brittle materials there we do not see any kind of the thermal expansion, so or the thermal expansion is almost negligible,
So we can say that we can say that the chip thickness is almost equal to the thickness of the uncut chip. Now here comes the point of the R. What is the R? It is considered as the cutting ratio. Here are the two types of the R. One is considered as the zeta type, okay, chip reduction, okay. One is the chip reduction, two ratios. One is a chip reduction, and another is a chip thickness ratio, okay. What is chip thickness ratio? R divided by T और TC, जो कि हमने इससे पहले भी फॉर्मूला लिखी tan of phi, that is the tan of the shear angle, ठीक है, tan of the shear angle, it is equal to the R. जो वहां पे हमने R लिखा था वो एक्चुअली यही वाला R है, that is the thickness ratio, that was equal to the cos of alpha divided by 1 minus or cos sine of alpha. Okay guys, so in this we see that what is R? R is the thickness of the uncut chip to the thickness of the chip, okay. And we also see that for the ductile material it will be the less than 1, because we see that the thickness of the chip for the ductile material is greater compared to that of the thickness of the uncut chip, okay guys. So it will be the less than here. For the brittle material we see both are the equal, so we can say that for the brittle material R is equal to 1. If in a question you are given the brittle material, so you have to directly take the R equal to 1, so you can neglect R, okay. In both the cases here, in the numerator as well as in the denominator, you simply need alpha. If you have given the orthogonal rack angle, then you will simply apply it and just find out, in order to find out the shear plane angle, okay guys. Then the another is the chip reduction ratio, ठीक है, or it is denoted by the zeta as well. What is it? It is actually the reciprocal of the R, so that is the TC by T, ठीक है. That is a simple. Obviously for the zeta will be greater than 1 for the ductile material, because R is less than 1 for the ductile material, and zeta is equal to 1, okay. So if we look into the another diagram here, we have here, this is a workpiece, ठीक है, sorry, this is tool here, ठीक है, or this is normal, ठीक है, and it forms, and this is alpha orthogonal angle, this is here, then this region becomes the 90 minus alpha, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम है 90, then this region becomes the 90 minus alpha, okay. और ये जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये है, ये बन जाता है हमारा चिप का वाला पोर्शन, ठीक है. Then you'll see that, and this angle is here, this angle is here phi, that is the shear plane angle. और अगर आप देखोगे, this is the direction of the velocity, and this is the direction of the velocity, cutting chip velocity, okay. And this is the WVS, that is the shear, इस direction में है shear plane, okay guys, okay. अब हमारे पास एक triangle है, it's a very good triangle, it will help us a lot. You see that जो कि हमने देखा in this direction, ये वाला angle, that is the VC is in the direction, यानी कि इस वाले direction में है VC, ठीक है. So मैं इसको रब कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, जो ये वाली direction में हमें मिला, that is VC. अगर ये अल्फा है, then this becomes 90 minus alpha, तो मैंने यहाँ पे mention किया this is the 90 minus alpha, ये है VC हमारा, ठीक है. और इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है अपना V, that is the direction of the cutting velocity, ठीक है. तो अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम स्लाइड करेंगे, ठीक है, if we move this vector in this way, parallelly इसको मूव करेंगे, तो हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है V, ठीक है, okay guys, this is V. एंड जब हम इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए VC, और उसकी जो डायरेक्शन है ये, ठीक है. और अगर हम देखेंगे इस डायरेक्शन में हमारे पास है शेयर प्लेन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास है ये शेयर प्लेन, शेयर वेलोसिटी, दैट इज द VS, ठीक है. इफ यू सी हियर इट इज 5, ठीक है, और ये है 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कौन सा एंगल बनेगा? ये बनेगा एक तो 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस
अल्फा। तो ये इन नटशेल बनता है हमें 90 माइनस अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा। ओके, तो ये वाला एंगल है ये। दिस इज कॉल्ड एज ए वेलोसिटी ट्रायंगल इन द ऑर्थोगोनल मशीनिंग। ऑर्थोगोनल मशीनिंग में हमारे पास ये। और अगर हम इसमें साइन रूल अप्लाई करेंगे, व्हाट इज द साइन रूल? ठीक है, पहले साइन रूल में वी हैव द थ्री वेलोसिटीज, ठीक है। देन साइन ऑफ ये वाला है, ये है वेक्टर, और वेक्टर के अपोजिट वाला एंगल उसका साइन एंगल, दैट इज वेयर वी अप्लाई द साइन रूल, ठीक है। देन वी विल सी v डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा, ठीक है, दैट इज दिस, इट इज इक्वल टू दी ये वाली वेलोसिटी, पहले ये, ठीक है, vs डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, vs डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा is equal to the vc divided by sin of phi, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होके sin 90 माइनस थीटा बनेगा cos ऑफ थीटा, ठीक है। sin 90 माइनस यहाँ पे ये है sin 90 माइनस अल्फा, दिस इज नॉट हियर पाई, दिस इज हियर अल्फा। ओके गाइस, सो ये बनेगा v by cos अल्फा, देन दिस becomes the v by sin phi, ये तो अपना ही है, ठीक है। देन from here we will get what we are going to get, we will get vc over v, इनको अगर हम इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, vc डिवाइडेड बाय v, इसको साइन को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा साइन फाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? सो हमें जो ये है कि ये क्या बता रहा है, द रेट ऑफ द रिमूवल ऑफ द अनकट चिप इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ द चिप फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी है हमें। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला मिली, ठीक है, दैट इज vc ओवर v, दैट इज द कटिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं इसको, दैट इज द सॉरी चिप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कटिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू द sin phi by cos of phi minus alpha. Okay, and one more thing, now see cross sectional area of the uncut chip into cutting velocity. If you take the area into velocity, ठीक है, अगर आप देखोगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पे है, ठीक है, द रेट एट विच या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम देखेंगे यहाँ पे, इस रेट ऑफ रिमूवल ऑफ द अनकट चिप इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जितना रिमूव होगा उतना ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग कैसे हम लेंगे, दैट इज एरिया, कंटिन्यूटी के हिसाब से हम लेते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एक तो हो गया एरिया ऑफ द अनकट चिप इंटू कटिंग वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द चिप इंटू चिप वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें ये बनेगा b इंटू टी, व्हाट इज अ b, b इज अ विड्थ एंड t इज द थिकनेस, वो बनेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, b इंटू टी, यानी कि ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अनकट चिप इंटू v, वेलोसिटी इज अ कटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये भी बनेगा, यहाँ पे ये tc है, ठीक है, ये बनेगा tc। देन व्हाट वी विल गेट, लेट अस अज्यूम, ये हम लोग इसमें assumption मानते हैं जो b है दैट इज इक्वल टू द bc, तो हम कट डाउन करेंगे, ठीक है। देन वी विल कट बोथ द टू, then then the equation is reduced to the t into v, then t into v is equal to the tc divided by vc। okay, तो guys यहाँ पे हमें मिला t by tc is equal to vc by v, तो actually this is equal to the r। guys ये क्यों बताने का मतलब था, ये यही है कि actually this is equal to the r, तो हमें जो r है that is equal to the t by tc, ठीक है, t by tc, t by tc, it is also equal to the vc by v, it is also equal to the r, वही होता है sin phi by cos of alpha minus ये। इसके लिए हमने इसको कैसे हमने डिराइव किया r के बराबर, इसमें हमने लगाया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास हमने लगाया, हमने देखा कि रेट एट विच द अनकट मटेरियल इज रिमूव्ड एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द चिप, ठीक है। देन फिर हमने ये देखा, हमने जो है b और bc को इक्वल एज्यूम किया, ऑब्वियसली वो होंगे भी इक्वल, दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, ठीक। देन वी विल गेट जो हमारा r है दैट वाज इक्वल टू दी tc और t और tc इज इक्वल टू द v ओवर vc।
सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी ओवर टी सी इज इक्वल टू वी सी ओवर बी, इट इज इक्वल टू साइन फाई ओवर कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। इट्स ऑल्सो considered as it is r is written as a lc divided by r, here is not derived but it is क्या हम लिख सकते हैं कि जो lc है lc divided by l, it's also equal to the, in case if it is a circular, if it is a round, here what is the l is considered the length of the chip and l is the length of the uncut chip, ठीक है। Okay, then this is a pi d, d is a dia of the chip divided by d is the farthest circular type of a chipping, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं if we take the reciprocal of the two, ठीक है, then it becomes the cos phi minus alpha, it becomes the 1 by r, ठीक है। this becomes the, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos phi minus alpha is also equal to cos phi cos alpha minus plus sin phi sin alpha, okay guys। then what will be its value, then this becomes the cos by, if you see here, if you see here, cos phi by sin phi, it is the cot phi and cos alpha plus sin phi or sin phi will be cancel out, then here will be this sin phi will remain, okay। 1 by r अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे then it becomes the 1 r by sin alpha, then this is going to be equal to cos by sin, then here from here we derived that very equation जो कि हमने इससे पहले करी, ठीक है। तो आप इसको आप याद रखोगे, how now you understood how tan phi is going to be equal to the r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha, okay guys। अब यहाँ पे so far हमने देखा कि मैकेनिक्स में ही we were analyzing the different velocities in different direction, उसमें हमने velocity triangle भी देखा जिसमें हमने साइन रूल अप्लाई किया, ठीक है गाइस। तो इसमें ये v था, यहाँ पे v था, एक था यहाँ पे वी सी कटिंग चिप वेलोसिटी एंड देन इन दिस डायरेक्शन वाज वी एस, ठीक है, शेयर वेलोसिटी, ठीक है। फिर हमने जो है एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स भी देख लिए, ठीक है। then accordingly we were able to derive this very kind of the equation, okay। now next it is a force analysis, okay। what is the force analysis इसमें हम देखेंगे if we see that there we saw the different velocities in different directions, but the thing is that when there exists the velocity there will exist also in that very direction some sort of a force, ठीक है। for example we see हम लोग इस डायरेक्शन में हम देखते हैं the cutting velocity, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स भी देखेंगे, ठीक। देन इस डायरेक्शन में हम देखते हैं चिप वेलोसिटी, देन इस डायरेक्शन में हम लोग जो रिएक्शन में हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फिर नॉर्मल फोर्स भी हम देखते हैं उसका नॉर्मल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल एंगल में जब फ्रिक्शनल फोर्स होता है तब उसमें जो है कुछ फ्रिक्शनल एंगल एग्जिस्ट होता है, देन उसका फिर नॉर्मल भी आ जाता है। फिर अगेन if there is a shear velocity we will also see some shear force and some we will also see the यहाँ पे जो ये वाला point है, here we will see the cutting force in this direction and the tangential force in the perpendicular direction as well, okay। we will also see when there will be the number of the forces, ठीक है, there for the stability, ठीक है, there will be some sort of the resultant of those क्या कहते हैं इसको, those forces, ठीक है। we will also see some sort of the resultants। अभी क्या मेंशन यहाँ पे कर रहा है, since the chip is moving with a uniform velocity that is a vc, that is a chip velocity, ठीक है, which means that the net force on the chip must be equal to the zero। हम लोग ये कह रहे हैं कि chip uniformly जो है रिमूव हो रहा है with a uniform velocity that is vc, so हम ये कहेंगे जो इस वाले में अगर हम फोर्स एनालाइज करेंगे जो उनका रिजल्टेंट होगा, चाहे इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस बनते हैं, R1 we will later see how the R1 is generated, R2 is generated and the R that is also a resultant force, 3 resultant forces, ठीक है, और वो सभी बराबर होंगे for the uniform chip velocity, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अब इसमें हम लोग देखते हैं there is a, basically these are not equal but we assume that these are equal and this assumption is considered as a merchant's assumption।
इसमें हम देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 resultants are generated when we see the forces, different forces in the different direction, ठीक है, applying when we analyze the mechanics of the tool and the workpiece while the turning, ठीक है, तो वहां पे हम लोग बहुत सारे रिजल्टेंट्स जनरेट होते हैं, एंड अंडर द merchant's assumption we assume that all these forces are equal and we consider them as R, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज R1, R1 क्या है, R1 is actually the resultant force of the cutting force to the normal, ठीक है, नॉर्मल। और ये R2 जो है वो किनका रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज द shear फोर्स का और जो है नॉर्मल का, ठीक है। देन R3 another resultant force between the cutting chip force, चिप में जो है जो फोर्स है और जो है दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज द टेंजेंशियल फोर्स, okay, where F is what is F? F is a frictional force acting on the chip and the tool surface, tool interface. If we see that here is the F, yeah, I will later draw it. Yeah, here is F, here is F. What is F? F is acting on this plane, ठीक है, this is actually the frictional force, ठीक है, F is what? It is a frictional force, ठीक है। Then there is a normal and another force, that is a normal. Normal force is normal acting on the chip and tool interface. If I draw a perpendicular in this direction, ठीक है, if there is a one tool and then in this direction you will see यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये है नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू दिस है। देन देयर इज द अनदर थिंग आल्सो वी नो दैट जो फोर्स होता है दैट्स इक्वल टू द फोर्स इज इक्वल टू द म्यू एन। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। और जो यानी कि जो जो ये दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस हैं, ये फोर्स और ओके, जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज फोर्स इज इक्वल टू द म्यू एन, ठीक है, ओके गाइस, दैट फोर्स इज इक्वल टू द म्यू एन, दैट म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देयर इज अनदर there is an angle that's called as a frictional angle, ठीक है, वो that's not here, we do not need to see it actually। जो tan of beta है, tan of beta is actually equal to the mu, ठीक है, mu is equal to tan of beta where beta is a frictional angle, okay guys। then there is a shear force on the shear plane, where is the shear force, where the shear force will apply in this plane, ये अगर इस प्लेन में shear force अप्लाई हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में shear force भी अप्लाई होगा, अगर इस ये shear force प्लेन है तो इसी में shear force भी अप्लाई होगा, ओके। एंड देन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द shear force, ठीक है, shear force के जो परपेंडिकुलर दैट इज Fn के परपेंडिकुलर में जो होगा इन दिस डायरेक्शन दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ओके गाइस। then the another force is the cutting force over thrust force, tangential force, that's right। अगर इस डायरेक्शन में कटिंग फोर्स जा रहा है, ठीक है, तो इनका जो इसका जो परपेंडिकुलर होगा गाइस, हमने देखे 6 फोर्सेस हमने देखे, मेन हमने देखी, जैसे कि इससे पहले हमने 3 वेलोसिटीज देखी, एक तो देखी इस डायरेक्शन में vc, ठीक है, अगर मैंने इस डायरेक्शन में vc माना, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड हम लोग देखते हैं रिएक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज F, और इन्हीं का परपेंडिकुलर हम लोग मान रहे हैं दैट इज N, ठीक है, तो बन गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इन वन डायरेक्शन इन द चिप वेलोसिटी की डायरेक्शन vc। another I consider the velocity that is the v is direction में, horizontal direction में हमने v को माना, ओके गाइस। सो इसी डायरेक्शन में हम लोग मान रहे जो फोर्स है दैट इज द कटिंग फोर्स, दैट इज द कटिंग फोर्स, और इसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दैट इज द थ्रस्ट फोर्स, ओके गाइस, दैट इज द ft, दैट इज द ft, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ओके, तो हो गया ये भी, ओके, दो फोर्सेस। एक और फोर्स है ऑन द शेयर वेलोसिटी हमने देखी, तो शेयर वेलोसिटी जो है एनालाइज, हियर इज द शेयर वेलोसिटी, और शेयर वेलोसिटी के अपोजिट में हम लोग देखते हैं, इसी के एंटी पैरेलल में हम लोग देखते हैं शेयर फोर्स दैट इज द एफसी, दैट इज एफएस, सॉरी एफएस, और एफएस के परपेंडिकुलर में हमने देखा दैट इज कंसीडर्ड एज द एफएन, यानी कि नॉर्मल टू द शेयर फोर्स, दैट इज द एफएन, एफ नॉर्मल,
यहाँ पे ये अलग से नॉर्मल फोर्स है F। तो कितने फोर्सेस हैं हमारे पास अब, दिस इज F, और फिर उसका परपेंडिकुलर दैट इज N, और इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज द चिप वेलोसिटी। अनदर इज द F ऑफ Fs, दैट इज द shear force along the shear plane, that is the force acting along the shear plane, और फिर इसी का नॉर्मल दैट इज द Fn, और ये किस में है, दैट इज द Vs में, ठीक है। देन द थर्ड इज द कटिंग फोर्स, ठीक है, Fc, इन व्हाट डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर में कौन सा है, दैट इज द Ft, दैट इज थ्रस्ट फोर्स और टेंजेंशियल थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, ये v के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। ओके गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, जो कि वन शुड नोट, कि ये दो फोर्सेस हैं, कटिंग फोर्स और द थ्रस्ट फोर्स, दीज आर मेजर्ड बाय द डायनामोमीटर। वन कैन गेट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यू कैन गेट द ऑब्जेक्टिव के जो कटिंग फोर्स और जो है टेंजेंट थ्रस्ट फोर्स, इनको हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर। यानी कि अगर हमने मेजर करना हो डिफरेंट फोर्सेस, तो उसमें बट हम लोग कैसे हम निकालेंगे, वो लेटर सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर दीज डिफरेंट फोर्सेस। बट ये है कि ये दो फोर्सेस जो हैं एफ सी और एस टी, ये हमने इसके लिए डिवाइस यूज करनी होती है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ डायनामोमीटर। ओके गाइस, ओके। फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, फिर जो अदर फोर्सेस है वो लेटर वर्ड्स हम देखेंगे कि कैसे। देन गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज द मर्चेंट सर्कल। मर्चेंट सर्कल जो है, मर्चेंट सर्कल ने हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस एंड देयर डायरेक्शन। सिंपली जैसे हम लोग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोहरत सर्कल, जिसमें कि हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं, और दैट इज एन इजी एंड ग्राफिकल वे में, ठीक है। हम लोगों को पता चलता है डिफरेंट स्ट्रेसेस इन डिफरेंट प्लेन्स, एंड in the same way there is a merchant circle that helps us to determine the different forces that are exerted while we do the machining process, ठीक है guys। This is a merchant circle that you are seeing here. Here you will see that here it is a work, here is a tool, and this is the orthogonal rack angle at a certain angle, ठीक है guys। हम लोग क्या करेंगे, I would like to draw this merchant circle here। so अब मैं इसमें जो है थोड़ा तो कैसे ड्रा करेंगे, आई विल ट्राई टू, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे बना दिया, ओके गाइस, ओके, ठीक है गाइस। तो सर्कल की अब हमें जरूरत नहीं है, नाउ आई विल चेंज इट टू द लाइन। अब मुझे लाइन की जरूरत है, ठीक है, ओके गाइस। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम पुटिंग एंड इन हियर, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा हो गया, ओके गाइस, ठीक है, ओके गाइस। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई विल ड्रॉ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इधर लेके जाते हैं इसको ताकि अच्छे से हो जाए, ओके गाइस, हियर इज द टूल, ओके गाइस। तो हमारा ये बन गया। इफ वी एनालाइज हियर, ठीक है, अगर मान लीजिए ये है हमारा अल्फा, ठीक है, अब इसी के सीध में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड,
हाय, ये मान लीजिए आप, मानना नहीं है, आई विल ड्रा इट, ठीक है। तो z, ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये है टूल, एक सेकेंड, ये हमारा बन गया अब वर्कपीस, ठीक है। अब ये बन गया हमारा टूल, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया, दिस इज द अल्फा, और इसी के सीध में मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो ये हमारा जो है ये बन गया हमारा एफ, दैट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो है इसी के सीध में जो है, जो ये बन जाता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है गाइस। और नाउ अब इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक, इन दिस डायरेक्शन, इसका जो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लाइक दिस, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, ओके गाइस, तो मैं अब इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो ये बन गया इसका परपेंडिकुलर, तो मैंने इसमें अब जुगाड़ लगाया, गाइस आई वाज नॉट एबल टू ड्रॉ इट, ठीक। तो गाइस ये हमारा एफ है, और इसका परपेंडिकुलर है एन, ठीक है। वेल देयर इज अनदर लाइन दैट आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कि परपेंडिकुलर है लाइक दिस, ओके गाइस। तो ये जो है, ये कौन सा वाला है, ये कटिंग जो है फोर्स, कटिंग फोर्स, दैट इज दी एफ सी, एफ सी का है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और एफ सी का जो परपेंडिकुलर है, जो कि हम जानते हैं, दैट इज, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, ये ऑलमोस्ट इसको यहाँ तक इसको मीट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ की, ठीक है। if I try to draw it like this, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इसमें it should come in this way, ठीक है। ओके गाइस, सो ये इसको इसके साथ मीट करना चाहिए at this point of time here, ओके गाइस। नाउ हियर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, ओके गाइस, सो ये आपका बनेगा एफ टी, ठीक है। मैं बाद में लिखूंगा इसके नाम, ठीक है। ये एफ टी है, ये हमारा ये है एफ सी है, दिस एफ टी, आई विल लेटर वर्ड्स। नाउ अनदर आई हैव टू ड्रॉ, इट इज दी जो कि एफ एस, एफ एस किस डायरेक्शन में होता है, दैट इज वो एट एन, एफ एस होता है शेयर प्लेन के साइड से, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग जितना एफ एस होगा, जितना शेयर प्लेस का एंगल होगा, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से एक फोर्स, एक और फोर्स ड्रा करेंगे, ठीक है। और जो जो एफ एस, जो एफ एस का परपेंडिकुलर होता है, दैट इज एफ एन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एफ एन को ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, इट्स लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करके अब यहाँ पे ला रहा हूँ, मान लीजिए दिस इज योर अनदर परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो एक और चीज है रिजल्टेंट, ठीक है, हियर आई वुड लाइक टू ड्रॉ रिजल्टेंट, दिस इज आवर रिजल्टेंट, ठीक है। और वो रिजल्टेंट जो है ये कहाँ पे मीट करेगा, this is where, yeah, here it is the resultant, okay, okay guys, this is our resultant। तो हमने क्या करना है, सिंपली अब मैं ये लाइन वाला जो है टूल जो है खत्म कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये दिस इज आवर एफ सी, ठीक है, दिस इज आवर एफ सी। और ये इसका परपेंडिकुलर जो है दैट इज एफ एन, ठीक है, एफ एन, ठीक है, एफ एन, ठीक है, ठीक है, दिस इज आवर एफ एन, ठीक है, एफ एन। और ये बन गया हमारा रिजल्टेंट दैट इज आर। यहाँ पे जो एंगल है दैट इज फाई,
सॉरी फाई, ठीक है, और वो है शेयर प्लेन एंगल। तो ये जो है दैट इज आवर एफ एस। इट्स मच इजियर। तो यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल है, दिस इज व्हाट आई सेड, this angle is alpha. This angle is here alpha. Sorry. So ये जो ये वाला एंगल है यहाँ पे, ये है अल्फा, ठीक है। अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अल्फा के अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है दैट इज एफ, ठीक है। अगर ये एफ है, ठीक है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, और एफ का जो परपेंडिकुलर है, एफ का जो परपेंडिकुलर है दैट इज एन। यहाँ पे हमें मिला दैट इज एन, ठीक है, दिस इज आवर एन, ओके। और एन और एफ से का जो रिजल्टेंट हमें मिला दैट इज दिस, ओके गाइस। सो यहाँ पे मैं आप सीधे बताता हूँ, दिस इज योर एफ और एन के दरमियान जो एंगल है दैट इज बीटा, सो दिस इज आवर फ्रिक्शनल एंगल, ठीक है। और अल्फा और आर के दरमियान जो एंगल है दैट विल बी द अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये बीटा है और ये 90 है, 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल है दिस इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। एक सेकेंड, ओके गाइस। सो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, अगर ये टोटल ये वाला है अल्फा, ठीक है, तो ये है दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस बिकम्स द बीटा माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज बीटा माइनस नॉट एक्स बट अल्फा, सॉरी, दिस इज बीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे ये है एक्स, एक्स हियर, एक्स इज एन एंगल, एंगल इज बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि ये सारा है 90, 90 में से निकालो पहले 90 माइनस बीटा, और फिर उसके बाद निकालो अल्फा भी, तो बचेगा 90 माइनस अल्फा ही बचेगा, ठीक है गाइस। तो this way we are able to find out the different angles, different forces, और इसी को हम कहते हैं गाइस मर्चेंट एंगल। ओके गाइस, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।